Very good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. I would like to wish a very good afternoon to Dean Academics YCET, Engineer Dinesh Gupta sir, HODs of various departments, faculty members. Today we have here with us the students and faculty members of Government Higher Secondary School, Bhalwal. YCET presents a very warm welcome to the students and the faculty members. We have here with us the faculty members of Government Higher Secondary School, Bhalwal, namely Dr. Priya Jitendra, teacher, Mrs. Anjana Kumari, teacher, Mrs. Parya Mahajan, vocational trainer. So we welcome you all. Now proceeding further, I would like to call upon Engineer Rajneesh Mogotra, HOD Civil Department on stage. Sir will brief you all about JGEI, benefits of engineering and its scope. Sir, please. Thank you. Thank you very much. I welcome once again the faculty members and dear students. As I want to tell you regarding my organization, it is JGEI, Jamal Group of Educational Institution. The founder members are Engineer Vidhi Singh Jambal, he is the chairman cum managing trustee. Thakur Shivdev Singh Jambal, he is the vice chairman of JGEI. And Engineer Renu Wangru, she is managing director of JGEI. Way back, they have started their journey with one campus. That was actually he started his journey in a small tutorial that was in a rented building, which is Luthra Academy at Kachishapuri. So, with the great motto and service towards the society, so he established his first campus, Purku Camp, by establishing two polytechnics, namely North Polytechnic and Institute of Engineering and Computer Science. With the kind support of public, they established further B.Ed college, namely National College of Education. And few years back, they have started a school. So another campus. Right now you are sitting here, this is the second campus of JGEI. Here we have Institute of Management Science, which imparts BCA, BBA and MBA and MCA, which is affiliated with the University of Jammu. Right now you are sitting in the auditorium of YCET, it's Yogananda College of Engineering and Technology. Here we impart BE, nowadays the nomenclature is changed, it's BTAC. In core engineering branches, namely civil engineering, electrical, mechanical and computer science. So third campus we have in Pathankot, it is in Shahpur Kandi. So I don't think that there is a need to describe about engineering courses or engineers. I think engineering is a very vast field, a very prime profession, you can say. Every country's progress can be assessed by the quality of engineer. So if I talk about civil engineering, so I think you can see a drastic change in your city or in the jobs, unless until if you will attain some skills or core competencies. ये भूल जाओ आप लोग, आमतौर पे लोग ना समाज में बात करते हैं और उसको नौकरी नहीं मिल रही है, बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है। वो पहले भी था अनएम्प्लॉयमेंट, एंशिएंट टाइम में भी अनएम्प्लॉयमेंट था। जब आपको आपके अंदर हुनर नहीं होगा, आपके अंदर पोटेंशियल नहीं होगा, तो आप कैसे, कोई कंपनी क्यों आपको हायर करेगी? अब आपको क्या लगता है कि बिना पढ़ाई करके आपको मार्क्स आ जाएंगे यूनिवर्सिटी के, सॉरी बोर्ड के एग्जामिनेशन में? आपको एफर्ट्स करने हैं। सो लाइफ इज ऑल अबाउट एफर्ट्स। जितने एफर्ट्स आप करो, बाकी लक ठीक है, लक भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी साथ देनी चाहिए, लेकिन लक पे थोड़े बैठे रहना है। जो हमारे हाथ में है हमें वो चीज करनी है। तो एक स्टेप आपने ले लिया, आई थिंक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू ऑल। एक स्टेप आपने ये लिया है कि आज आप लाइव, मुझे लगता है आपने मुझे सुना है, आपके स्कूल में मैं आया था। आज आप अपनी आंखों से विटनेस करेंगे। Am I right? तो क्योंकि देखने से आपको पता चलेगा कि आपको, और अभी से स्टार्ट कर लो, ड्रीम लेना कि मैंने क्या चीज करनी है। Gone are the days when people used to say
मम्मा ने कहा है, पापा ने कहा ये ले लो। अब आपने खुद अपना फ्यूचर चुनना है, सेलेक्ट करना है। बाकी आपके एक्सपीरियंस टीचर्स आपके साथ हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि विच इज़ बेटर, किस प्रोफेशन में ट्रेनिंग लेनी है, उस प्रोफेशन का स्कोप क्या है और उस प्रोफेशन की एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिल सकती है। बच्चों को पता ही नहीं होता है, बच्चे डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता है कि कौन सी एप्लीकेशंस को हम लोग एलिजिबल होंगे, कौन सी एप्लीकेशंस को हमें फिल करना है। तो इट मीन्स लैकिंग। जो इंसान लैक करेगा, आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन जो भी चल रहा है उसके साथ आपको स्केल अप करना है। और मुझे लगता है अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, इंडिया हैज अचीव्ड अ ग्रेट स्केल एंड ग्रेट स्टैंडर्ड्स, showing you all that how we are different from other institutions. Over to you. To start with, first of all, I would like to welcome the faculty members of Government Higher Secondary School Bilwal, the students of Government Higher Secondary School Bilwal, Dean Academics YCT Engineer Dinesh Gupta ji, head of the departments of the various departments. So as Rajneesh sir rightly said that आप लोग यहाँ पर आए हैं इस कॉलेज में। हमारा कॉलेज YCT 2013 में एग्जिस्ट हुआ था और UT जम्मू एंड कश्मीर में ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, बट वी आर प्राउडली सेज कि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज डिफरेंट है बाकी अदर इंस्टीट्यूट से। द रीजन बीइंग इस कॉलेज में एकेडमिक्स पे तो फोकस दिया ही जाता है, जो आपका नॉर्मल एकेडमिक वर्क रहता है, आपकी क्लासरूम लर्निंग्स रहती हैं, उस पर तो आपका फोकस दिया ही जाता है। बट इन एडिशन टू दैट यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स की जाती है, सो दैट आफ्टर डूइंग अ 4-year इंजीनियरिंग प्रोग्राम आप मार्केट में आए और आप एक फुल फ्लेज्ड इंजीनियर लेके आए। सो हाउ इज YCT इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स? एक्टिविटीज एक नॉर्मल रूटीन है हमारा, अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स तो चलता ही रहता है, बट इन एडिशन टू दैट और क्या क्या चीजें हम लोग इसमें करते रहते हैं। So to start with, we have a tagline where excellence is just a baby. We have initiative and the achievements. Bright Institute Award by IIT Bombay. Now the question is, what is this spoken tutorial project and what is this IIT Bombay? You all know, हमारे पूरे इंडिया में we have different IITs, different NITs, we have central universities, we have deemed universities, we have engineering colleges. So among these IITs are the top level engineering colleges जहाँ पर different disciplines की engineering करवाई जाती है। And इन institutes में आपकी अगर admission process है तो उसके लिए आपको JEE Mains या JEE Advanced के पेपर क्रैक करके आप वहाँ पर admission ले सकते हैं। We have an Institute Innovation Council and you see our YCT ranked second among all the colleges of universities of UT JNT. Now what is this IIC? This IIC is basically Institute Innovation Council, जिसको अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MHRD AICT गवर्न कर रही है। ना अब ये चीज क्या है, पूरे इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आप लोगों का 4 इयर्स का इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता है और लास्ट ईयर में आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। सिंपल आई से प्रोजेक्ट मीन, जैसे अभी आप लोग 12th में अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनता है, ये प्रोजेक्ट की क्या वेटेज है, ये प्रोजेक्ट क्या मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, इसके लिए जो फंडिंग की जाती है ये फंडिंग IIC करता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अभी आप लोग अपने माइंड्स में थोड़ा सा रिकॉल करिए, आजकल एक बड़े ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है Zomato। Now third will be we have a NPTEL ranking, YCT back third among top 8 institutions and first among the private institution in JNK. We are the number 1 at private institute of JNK. We have a SWAYAM NPTEL. Now what is this SWAYAM NPTEL program? This SWAYAM NPTEL program is basically in collaboration with IIT Madras. ये भी एक आपका लर्निंग का एकेडमिक्स के लिए है, जहां पर आप डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाके डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट लेक्चर सुन के उनकी असाइनमेंट्स करके उनका पेपर कर सकते हैं। एंड आपको एक चीज बता दें, हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, अब उनके करिकुलम में ये सब्जेक्ट मैंडेटरी कर चुका हुआ है, दैट इज स्वयं NPTEL प्रोग्राम। तो स्टूडेंट को क्या करना है, जैसे ही वो अपने यहाँ पर रजिस्टर करता है, उसको इस स्वयं NPTEL प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर करना है, देन वो ऑनलाइन सारे सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है इन एडिशन टू दैट योर एकेडमिक्स पार्ट।
नॉर्मल एकेडमिक्स में जो आपके लेक्चर्स हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे, बट इन एडिशन टू दैट आप इनमें से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम स्वयं नेप्टर प्रोग्राम एज एक्टिव स्पॉक. Now we have NDL, that is called as the National Digital Library. Now what does it mean? अभी आप लोगों के स्कूल में एक लाइब्रेरी होगी, that is a physical library. जब आप लोग फ्री होते हैं, जब आप लोगों को कुछ बुक या जर्नल्स या कोई भी रेफरेंस बुक चाहिए, आप लाइब्रेरी जाते हैं, वहां से बुक इशू करवा के उसको स्टडी पर्पस के लिए यूज करते हैं. The same aspect in our YCT we have a physical book जहां पर more than 10,000 बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास जर्नल्स अवेलेबल है, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, ई-मैगजीन सब कुछ अवेलेबल है. But in addition to that, in engineering सिर्फ छोटी सी नॉलेज नहीं चाहिए, we have required a vast knowledge. So we have another MOU with IIT Delhi and this MOU is basically the virtual lab. Now what does it mean the virtual lab? Virtual lab mean एक ऐसी लैब जो फिजिकली अपीयर नहीं होती. कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो किसी ना किसी वजह से आप लोग नहीं परफॉर्म कर पाते फिजिकली, या कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म कर सकते हो फिजिकली लेकिन उसमें कुछ डेंजर लेवल है, या आप चाहते हैं कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट गलत आया तो आपको फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़ेगा. तो उसके लिए वी हैव एन एमओयू विद द IIT दिल्ली, द वर्चुअल लैब. इस वर्चुअल लैब में नाउ व्हाट डज इट मीन इंटर्नशिप? इंटर्नशिप क्या होती है? इंटर्नशिप का मतलब ये है आप लोगों की 4 साल की जर्नी में आप लोगों को 1 महीना 2 महीने या 6 महीने के लिए हम इंडस्ट्री में भेजते हैं, सो दैट एकेडमिक्स तो आपने पढ़ लिया, बुक्स आपने पढ़ ली, लेकिन इंडस्ट्री में एक्चुअल वर्क कैसे होता है वो आप लोग सीखें. और उसके लिए हमारे डिफरेंट एमओयूज हैं, लाइक वी हैव स्टूडेंट एरा. ये हमें हेल्प करता है स्टूडेंट्स को उन इंडस्ट्रीज में भेजता है जहां पर वो जाके अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं, 6 मंथ्स 4 मंथ्स और 1 मंथ. द थिंग इज आप लोगों ने जो पढ़ा और जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है वो टोटली मिसमैच होती है. आप लोगों का एकेडमिक्स स्ट्रांग होगा पर इंडस्ट्री को अपनी रिक्वायरमेंट्स है. सो इन एडिशन टू एकेडमिक्स आप लोगों का इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी करवाना जरूरी है. तो इसके लिए हमारे ये एमओयूज हैं जो हमें हेल्प करते हैं. बाद में आऊंगा, दैट इज आईसीटी एकेडमी क्या है इसके ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन वी हैव एन एमओयू विद आईसीटी एकेडमी. इंटर्नशाला, वी हैव जेट किंग. अभी मैंने आपसे बात की स्विगी एंड जोमेटो, ये किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है. आप अपनी लाइव लोकेशन देखते हो कि हमारा जो राइडर है वो कहां पहुंचा, उसके पीछे सारी वो जो कोडिंग है वो कोडिंग कौन करता है, वो आप जैसे इंजीनियर्स करते हैं. और वो सिखाते कौन है? दिस इज द वन ऑफ द इंस्टीट्यूट जिसके साथ हमारा टाई अप है. स्टूडेंट यहां जाते हैं, वहां जाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं और यहां आके हमें सर्टिफिकेशन देते हैं, सो दैट इंजीनियरिंग 4 साल की कंप्लीट होने के बाद एक सक्षम इंजीनियर तैयार हो सके जो मार्केट में उसी टाइम एब्जॉर्ब कर लिया जाए. यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द इंपीरियल इंस्टीट्यूट जहां से हमारा एमओयू है इन टर्म्स ऑफ इंक्यूबेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स. इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, दीज आर ऑल द कंपनीज जहां पर हमारे स्टूडेंट जाते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम्स करने के लिए. यू सी दीज स्टूडेंट्स, अभी आपको रजनीश सर ने बताया कि वी आर फोकस्ड टुवर्ड्स द ई व्हीकल्स. अब जो ई व्हीकल्स मार्केट में चल रहे हैं, जो आपके ई रिक्शा चल रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस कैसे हो रही है, वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं. तो ये स्टूडेंट्स वहां जाके 6 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं कि कैसे ये वर्कआउट कर रहे हैं. सी ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो एम्स जम्मू या एम्स श्रीनगर बन रहा है, एक्चुअल में जो बन रहा है, ये बिल्डिंग बन गई, ये स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन जब ये बन रहा था तब जो इंजीनियर्स यहां आके देख रहे थे, वैसे हमारे स्टूडेंट एम्स जम्मू एम्स श्रीनगर में जाके देख रहे हैं कि कैसे इतने इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. तभी रिवर फ्रंट सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, कटरा जम्मू अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जो भी बन रहा है, IIM जम्मू, mechanical students, CIII academics part is okay. Now we have a workshop all over India, pan India. कई organizations, कई institutes अपने workshops करवाते हैं और वो workshops teachers के लिए as well as students के लिए होते हैं. So वहां पर हमारे students, हमारे teachers ने actively participate किया for internship, sorry, for workshops के लिए. ये आपकी ऑनलाइन वर्कशॉप्स,
वी हैव अ साइबर फोरेंसिक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय आईआईटी, जिसमें हमारी फैकल्टी वहां गए थे, विजिट किया था। बिकॉज आज के सिनेरियो में वो टाइम चला गया जो हम लोग नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड यूज करते थे। नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड्स क्या होते थे? टीचर क्लास में आता था, ब्लैक बोर्ड यूज करता था, चॉक लिखता था। और आज की डेट में तो ऐसा हाल हो चुका है, सिंस आई बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आप लोगों ने फिजिक्स में ओम्स लॉ पढ़ा होगा। आज के सिनेरियो में ये बन चुका है कि अगर मैं आपको ओम्स लॉ की डेफिनेशन दूंगा तो आपकी साइड से 10 डेफिनेशनें मेरे पास आ जाएंगी। क्यों? ड्यू टू द इंटरनेट। सो फैकल्टी को भी इनरिच्ड होना है डे बाय डे। उसके लिए वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफडीपी प्रोग्राम्स। वी हैव 5 एफडीपी प्रोग्राम्स, 3 एफडीपी प्रोग्राम्स, वीक, मंथ। ये सारी एफडीपी प्रोग्राम्स हमारी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन चलती रहती हैं। एआई के ऊपर आज का सिनेरियो ही एआई का है आपका। आज आप लोग अपने स्कूल से निकल के हमारे कॉलेज में आए हो एक विजिट के लिए। आप ये देखने आए हो कि हमारे कॉलेज में यहाँ पर क्लासरूम है, यहाँ फिजिक्स लैब है, यहाँ ये होता है। वाईसीटी में क्या क्या है? वैसे ही हमारे बच्चे जब वाईसीटी में नॉर्मल पढ़ते हैं तो हम लोग उनको इंडस्ट्रियल विजिट्स पे भेजते हैं, ताकि आप देख के आइए कि इंडस्ट्री में काम कैसे होते हैं। 1 डे, 2 डे, 3 डे, वीक लॉन्ग चलते रहते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स आपके डैमेज होते हैं गवर्नमेंट के, जहां पर रिपेयर किए जाते हैं, वहां स्टूडेंट जाके देख रहे हैं कि किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मर्स रिपेयर हो रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए। CIIIT जम्मू, सुधीर जेनसेट मैकेनिकल स्टूडेंट्स वहां गए, देखा, हमने पढ़ा, किताब में पढ़ा कि जनरेटर ये होता है, ऐसे वर्क करता है, एक्चुअल में जनरेटर कैसा है वहां जाके देख रहे हैं। यहां पे तो पढ़ाते हैं, बाहर भी इंस्टीट्यूट्स में लेक्चर्स देते हैं। जो बुक्स आप पढ़ते हैं हमारी फैकल्टी ने खुद से बुक्स लिखी हुई हैं जो वर्ल्ड वाइड पब्लिश्ड हैं। ऑनलाइन आप बुक्स को देख सकते हैं। These all the things. Now we have a student achievements. This is our one of the student, ex-student recently passed out. He bagged a title of Jammu and Kashmir runner-up and Mr. Stylish all over the India. This is another student. He received the Youth Icon Award. These students, they participate in a TIE hackathon and bagged a prize. एक नॉर्मल रूटीन होता रहता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्रोफेसर्स लेक्चर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन यहां देते रहते हैं। क्विकली गो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, सम आर टेक्निकल, सम आर नॉट टेक्निकल, सम फ्रॉम इनोवेशन, सम फ्रॉम एंड आगे सिर्फ 5 मिनट और लूंगा। एकेडमिक्स हो गया, एफडीपीज हो गई, वर्कशॉप्स हो गया, सब कुछ हो गया। द फाइनल कॉल इज इतना कुछ करने के बाद, ये 4 साल का कुछ करने के बाद अल्टीमेट गोल इज योर जॉब। तो हमारे स्टूडेंट किस किस कंपनी में कहां प्लेस्ड हैं, कितना पैकेज ले रहे हैं, वो आपको जस्ट अ शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं कितना दिखता है। सो इन वाईसीटी देयर इज अ डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल, जहां पर हमारे हेड ऑफ प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, उनके साथ पूरी टीम है जो बच्चों की प्लेसमेंट्स में हेल्प करते हैं। सो These are some companies and you can see the batch 2015 and 19, जो बैच हमारे पास 2015 में आया था और 19 में जो चला गया। See, these are the multinational companies. 33 students get placed in all these top level multinational companies, जहां पर आपका highest package will be 8 LPA, the package will be 10 LPA. अब आप roughly अपने माइंड में बना लीजिए, अगर Batch 1923, 43 students get placed in all these multinational companies. Flipkart, the head of the department received the offer letter on the behalf of the student, जहां पर बच्चे Flipkart में placed हुए थे. These are the students जो placed in different organizations. All students get placed. Pentagon Space Computer Engineering Department के students. Bangalore के students. See, these are the companies. इनका प्लेसमेंट चल रहा था इस टाइम पर। ICT
वी हैव अ मेगा जॉब लिंक फेयर जो वाईसीटी में कराया गया था। सिर्फ एक यही इंस्टीट्यूट था पूरे यूटी J&K में जहां पर ये प्लेसमेंट ड्राइव करवाई गई थी, एंड यू कैन सी दिस पैकेज ऑफ 7.8। नाउ इन कंपनीज में प्लेस होने के लिए ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते रहते हैं सो दैट कि स्टूडेंट्स एक ओवरऑल गुण ले सकें। सो इन चीजों पर काम किया जाता है, इसकी वजह से स्टूडेंट जो फाइनल इंटरव्यू में बैठता है ही और शी गेट प्लेस्ड। यू कैन सी ये आपके ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं प्री फाइनल ईयर्स के लिए, दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं भी आपको बोलूंगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, 1 मिनट के लिए बोलिए। बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए 1 मिनट के लिए बोलना। 1 मिनट आपको नॉन स्टॉप 60 सेकंड्स के आपको बोलना, अपने आप को बताना। जो कंपनीज हैं उनमें जाने के लिए पहले स्टूडेंट को तैयार किया जाता है, तो ये सारे चल रहे हैं। कैसे ग्रुप डिस्कशन होती है, तो फैकल्टी स्टूडेंट्स को तैयार करती है कि आप लोग इस तरीके से तैयार करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर वाईसीटी व्हिच मेक्स आवर वाईसीटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस। और यहां के स्टूडेंट तभी एट द एंड ऑफ द डे प्राउडली बोलते हैं कि वी आर द वाईसीटी। एंड वो आप लोगों के 12th के एग्जाम्स अच्छे से हों, उसके बाद आप लोग भी हमारे कॉलेज का पार्ट। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू। I'm sure you must agree that we are doing a remarkable job. Do you agree? Yes, sir. Okay. So one important thing I want to discuss in the last but not least, how you can seek admission. This is very important. मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी यूनियन टेरिटरी की एक बॉडी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, दैट इज BOPE, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। In the month of March or maybe April first week, they will announce कि आपको इंजीनियरिंग जो भी इंटरेस्टेड होगा इंजीनियरिंग के लिए, नीट के लिए, वो अपने फॉर्म्स जो है वो फिल करेंगे। If they will get more number of applications, तो नीट का तो एग्जाम होता ही है फॉर सीकिंग एडमिशन इन मेडिकल साइड, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग के लिए आपको हो सकता है JKCET एंट्रेंस टेस्ट देना पड़े। अगर आपकी एप्लीकेशंस कम होती हैं, जो भी एक्सपेक्टेड उनकी होती हैं, अगर उससे नंबर कम होगा तो वो केवल आपका मेरिट देखेंगे 12th बेस पे और उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट लिस्टेड करेंगे स्टूडेंट्स को। और आपको BOPE ऑफिस जो है हमारा साउथ ब्लॉक भाऊ प्लाजा में है जम्मू, वहाँ पे जाके आपको अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी कि मुझे ये स्ट्रीम चाहिए और मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए। इन एडिशन टू दिस हमारे पास मैनेजमेंट कोटा है, उसमें कंडीशन ये होती है कि आपको BOPE का फॉर्म फिल होना चाहिए। खैर हमारी गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है, मे बी वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें हमारे फेवर में रिजल्ट मिलेगा कि हमें वो अलो कर देंगे कि विद सर्टेन क्राइटेरिया परसेंटेज कि इस परसेंट पे आप बच्चे को एडमिशन दे सकते हैं अपने कॉलेज में अंडर मैनेजमेंट कोटा। बट अभी तक एज ऑफ नाउ अभी डिसीजन नहीं आया गवर्नमेंट का, तो हम वी कैन नॉट कमिट। तो अभी तक ऐसा है कि अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया होगा तो यू कैन नॉट सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज, प्लीज रिमेंबर। तो इसलिए मैंडेटरी हो जाता है कि जैसे ही BOPE का फॉर्म ओपन हो आपको फॉर्म फिल करना है। आप एंट्रेंस दें नहीं दें इट इज अ सेकेंडरी इशू। आपको रोल नंबर आएगा, अभी भी आपको रोल नंबर आते हैं बोर्ड से, तभी आप पेपर दे पाते हो। एडमिट कार्ड जो होता है, तो एडमिट कार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम आई राइट? Yes, sir. तो रिमेंबर, बाकी आपका डाटाबेस हमारे पास होगा, हम आपको कर्टसी से एक कॉल कर देंगे कि BOPE के फॉर्म ओपन हो गए हैं, आउट हो गए हैं, और काइंडली आप उसमें अप्लाई कीजिए। बाकी आप डिसाइड कीजिए कि आपने कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन से कॉलेज में आना है। मैं तो यही कहूँगा कि आज की डेट में बाहर जाना जो है दैट इज नॉट गुड। इट इज़ वेरी सेफ एंड साउंड कि आप जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे लोग साइंस कॉलेज में, MM कॉलेज में, तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एंड आई एम हैविंग फर्म बिलीफ कि जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन है दैट इज अनपैरेलल प्रोफेशन। अगर आपको जॉब नहीं करनी है तो आज सबसे बड़ा हम लोग क्या एक मिशन लेके चले हैं
कि आप लोग एंटरप्रेन्योर बने। इन स्पाइट ऑफ जॉब सीकर्स यू कैन बिकम जॉब गिवर। हम तो स्टूडेंट्स को भी कह रहे हैं कि अगर हमारे 20% या 10% स्टूडेंट्स अगर अपना स्टार्टअप शुरू कर लें, सो आई एम श्योर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वही ऑब्जर्व कर रहे हैं एट डिफरेंट पोजीशंस। जैसे सर ने बताया आपको कि MOU is just like a bridge between industry and institution, क्योंकि आप सबका फ्यूचर जो है वो सारा इंडस्ट्री में है, कॉर्पोरेट सेक्टर में है। देयर इज नो डाउट अगर गवर्नमेंट की पोस्टें निकलती है उसके लिए तो आप एलिजिबल हो गए, लेकिन हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू वेट? देयर आर वेरी लेस चांसेस एंड वेरी लेस नंबर ऑफ पोजीशंस। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जितनी फास्ट ग्रोथ आपकी प्राइवेट सेक्टर में है इतनी कहीं भी नहीं है। बाकी बिफोर लिविंग दिस सेमिनार हॉल, आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। आई थिंक एक गर्ल्स का ग्रुप बना लेते हैं, एक बॉयज का। जो गर्ल्स का ग्रुप है तो उसको अकम्पनी कर लेंगी अनुप्रीत मैम, शी इज हेडिंग कंप्यूटर साइंस। बाकी आप लोग तो जाएंगे ही साथ में, एंड बॉयज जो है उनको लीड करेंगे आवर हेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिस्टर इंद्रदीप सिंह। थैंक यू वेरी मच। आप नीचे करो, बड़ा करो। ऑनलाइन लाइब्रेरी के बारे में ये हमारी ऑफलाइन लाइब्रेरी तो हमारे कॉलेज में बैठ सकते हैं, अपने फ्री टाइम में स्टडी कर सकते हैं, बुक्स इशू करा सकते हैं। आपको सेमेस्टर की बुक्स भी लेने की जरूरत है, वहाँ आपको बुक्स इशू हो जाती है, ठीक है। फिर आपको सेमेस्टर के बाद 6 मंथ के बाद गो एंड सी ऑल दोस। इस सेक्शन में कंप्यूटर्स की बुक्स हैं, इस सेक्शन में इलेक्ट्रिकल की बुक्स हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो यू कैन विजिट दिस साइड ऑफ। जैसे आपके स्कूल में लाइब्रेरी है ना, इसमें सब्जेक्ट वाइज होते हैं ना। मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स जनरल सब्जेक्ट रीड मारना। जैसे केमिस्ट्री के लिए मालूम क्या आने वाला? आगे इधर आ जाओ, आगे बच्चे इधर आ जाओ, तो इधर आ जाओ। क्या लग रहा है, क्या है? कंप्यूटर सेंटर हाँ, लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। आपकी ना सिस्टम को अगर हमें पता लगता है कि बच्चा कुछ ब्लॉक कर देते हैं, वो वेबसाइट ब्लॉक कर देते हैं, तो देयर इज नो क्वेश्चन कि हम क्यों ये लैब डिफरेंट होते हैं, कंप्यूटर की लैब नाम नहीं है। सो मशीन्स आर रिलेटेड टू दीस मशीन्स आर रिलेटेड टू सम कॉमन साइंस। ये बच्चे हमारी जो नॉर्मल ये लैब है इलेक्ट्रिकल मशीन्स की लैब है, ठीक है। इस मशीन लैब में क्या होता है कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लैब को प्रैक्टिकल्स करते हैं। अब इस लैब में क्या है, वी हैव सिंगल फेज सप्लाई, वी हैव 3 फेज सप्लाई, वी हैव डीसी सप्लाई, वी हैव एसी सप्लाई। तो ये सप्लाईज क्या होती हैं अभी तो हम लोग बात करते हैं। जैसे आपके शाबाश शाबाश शाबाश। बस बेस इस साइड अभी बताते हैं लैब क्या है। वो नीचे स्लाइड थी, इस लैब का नाम है आपका IoT लैब, दैट इज द कॉल्ड एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स लैब। जैसे आप इस लैब में देखते हो, इस लैब में 2 चीजें हमें चाहिए होती हैं। एक हमें चाहिए होता है हार्डवेयर
और एक हमें चाहिए होता है सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर है वो सारा इन सिस्टम्स के अंदर इनबिल्ट है जिसकी प्रोग्रामिंग होती है। और जो हार्डवेयर्स हैं, हार्डवेयर हम लोग लूज यहाँ नहीं रखते हैं, वो हमारे लैब में अलमीरा के अंदर हैं। बच्चे अपने फ्री टाइम पे आते हैं, बच्चे अपना एक्सपेरिमेंट के लिए या प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए अपनी किट्स लेते हैं और किट्स लेने के बाद यहाँ आगे दिस लैब इज बेसिकली वर्चुअल लैब। और इस लैब को तो गवर्न चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं IIT दिल्ली। आप देख लीजिए, हमने इस लैब को इनॉग्रेट किया था 3 मई 2023 को, और IIT दिल्ली के एग्जीक्यूटिव ट्रेनर मिस्टर प्रतीक शर्मा ने इस लैब की आपके यहाँ इनॉग्रेशन की। ये लैब बच्चे, अगर मैं बात करूँ, ये लैब एक हमारी डेडिकेटेड लैब है सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि ये सिर्फ कंप्यूटर्स लगे हैं, सिर्फ कंप्यूटर वाले बैठेंगे। यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल चेक करने के लिए क्या इस पूरे मटेरियल टेस्टिंग है। और ऐसे कुछ मटेरियल लैब बोलते हैं, मैकेनिकल स्ट्रक्चर लैब, डिफरेंट नाम है इसके। लेकिन मेजरली हम उसको जनरली ऐसे बोलते हैं मटेरियल टेस्टिंग है। अलग अलग ऑपरेशन है ना, वो ठीक है। जैसे ये तो समझिए आप ये क्या है, इंडियन डायमंड, ये भी लिमिटेड लैंग्वेज है, ठीक है। ये चीज़ बनाई गई है, और इस तरह के ये जैसे ये बच्चों ने बनाई गई है, प्रैक्टिकल करते हैं। उसके साथ में जैसे में आता है